Yes, students. So today we are going to start with our new chapter, that is car- carbon and its compound. Right. So that is carbon, and as you already know what is carbon. Can you tell me the atomic number of carbon? I am very much slow in this chapter. Six. Can you tell me the atomic number of carbon? Ma'am, Yes. 6. Six. Ma'am, 6. 6. Okay, atomic number of carbon is 6. What is the valency of carbon? Yes, Two. Ma'am, valency. 4. Oh, Ma'am, four. okay. Now these 2 points you should keep in your mind, that atomic number of carbon is 6 and valency of carbon is 4. Okay, that should be in your mind when I am teaching further. So what are the topics that we are going to discuss today? First I am going to give introduction, right? um, what is the carbon, where it is present, what type of carbon, what are the materials that is made up of, that I am going to give. Then I am going to discuss with you the bonding of in carbon, that is covalent bond. In metals and non-metals I discussed ionic bond, जहाँ पर गिविंग एंड टेकिंग होता था, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स दिए जा रहे थे. फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड, डू यू रिमेंबर? Sodium chloride we have discussed magnesium chloride, we have discussed sodium oxide, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे थे, right? That bonding is called ionic bonding. But when we are talking about carbon compounds, there you are having this covalent bonding. Okay, clear? So here you are having covalent bonding, that I am going to discuss what is covalent bond. Okay, then we are going to discuss about allotropes of carbon. In allotropes of carbon you have already studied in your 8th class, that is diamond, graphite, fullerenes. Have you studied? Remember? याद है या भूल गए? About, Yes, ma'am. Yes, ma'am. okay, then versatile nature of carbon. Carbon has some unique property जो इस element के पास ही है और किसी element के पास नहीं है. And because of that property we are having large number of carbon compounds, right? Clear? Now this, coming to the occurrence of carbon, as I told you, we are having large number of carbon compounds. Why? Because of its sharing properties. इसके अंदर covalent bonding है. Covalent bonding में electrons की sharing होती है, right? So it is present in large amount wherever you, whatever you are burning. जो चीज जलाते हो अगर वो काली पड़ जाती है, that means that is made up of carbon. Even your food items are having carbon. योर शुगर इज हैविंग कार्बन. शुगर व्हाइट है, शुगर को जला के देखो वो काली हो जाती है. पेपर को जला के देखो वो काला हो जाता है. कोई भी खाने की सब्जी आपकी जल जाती है तो आपने देखा वो काली हो जाती है. हैव यू सीन सम टाइम इफ यू आर गोइंग टू किचन? Yes, ma'am. कभी Yes, आपसे सब्जी ma'am. जली होगी, कभी आपसे चाय जल गई होगी, भूल गए रख के, टीवी देखने लग गए, मोबाइल पर फ्रेंड का फोन आ गया, लग गए तो जल जाती है ना. सो दीज आर द थिंग्स बिकमिंग ब्लैक. व्हाई? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कार्बन, right? Carbon is found everywhere, and because of this property, because carbon can combine with everyone, a large amount of carbon compounds are made. इतने कार्बन कंपाउंड हैं कि we have make a separate branch of chemistry that is called organic chemistry. Clear? कार्बन कंपाउंड्स इतने ज्यादा हैं कि हमने एक सेपरेट ब्रांच बनाई हुई है केमिस्ट्री की, that is called organic chemistry. We are having 4 branches of chemistry. One is physical, second one is chemical, third one is organic, fourth one is inorganic. If I am talking about organic and inorganic, organic में सिर्फ कार्बन कंपाउंड ही पढ़ोगे, right? This carbon and its compound, it is the chapter of, this is the chapter of organic chemistry, right? Carbon compound is a chapter of organic chemistry. But when I am talking about inorganic chemistry, उसमें कार्बन कंपाउंड नहीं है, बाकी सारे एलिमेंट्स के कंपाउंड है. तो आप देखो एक ब्रांच में सिर्फ कार्बन कंपाउंड है और दूसरी ब्रांच में सारे एलिमेंट्स मेटल नॉन मेटल्स के कंपाउंड्स है, राइट? क्लियर?
तो देखो कि कार्बन कंपाउंड कितना बड़ा होगा जिससे कि आपको एक सेपरेट ब्रांच बनानी पड़ेगी, right? So if we are talking about organic chemistry, that means we are studying about carbon compounds. Clear? Organic chemistry में क्या पढ़ोगे? What are you going to read in carbon in organic chemistry? Carbon compound. Carbon compounds only, right? So where do you find carbon? That is the occurrence of carbon. Carbon is found in the atmosphere, inside the earth crust, and in all living organism. Even your body is containing carbon. आपकी स्किन जल के काली हो जाती है, आपने नोट किया है? ठीक है? So that means we are also made up of carbon, right? Carbon is present in fuels like wood, material, wood, coal, charcoal, coke, petroleum, etc. Right? So you are having carbon in all these natural, renewable, non-renewable resources. It is present in biogas also. It is present in natural gas also. It is present in marsh gas, methane, everywhere you will find. Now this carbon is present in the compounds like carbonates, hydrogen carbonates, etc. That is in our earth crust, we are having 0.02% of carbon in carbonates. हमारे अर्थ क्रस्ट में जो कार्बोनेट्स हाइड्रोजन कार्बोनेट्स पाए जाते हैं इनमें 0.02% ऑफ कार्बन होता है, right? So that means carbon is present in the form of carbonates, carbon is present in the forms of hydrogen carbonates, right? Clear? And about zero, and carbon is also present in the form of carbon dioxide. That is in our atmosphere we are having how much percent? Can you tell me? Carbon dioxide की percentage can you tell me in atmosphere? 0.03. 0.03%. So you can see अगर 0.03% की भी हम बात कर रहे हैं, अब ये देखो कार्बन डाइऑक्साइड कितनी ज्यादा है, फिर भी कितनी ज्यादा है, right? So we are having carbon everywhere. Now this carbon is found in the free state as diamond graphite furnace. What is this diamond graphite furnace? These are called allotropic forms of carbon. Now, what is this allotropic form of carbon that I will discuss later on, right? We are going to discuss the properties of this allotropic forms of carbon also. Now, before that, I am going to discuss with you bonding in carbon, that is covalent bond, right? Now, before starting the chapter, I ask you the valency of carbon. You told how much? मैंने बोला था ना कि याद रखना है. What is the atomic number of carbon? 6. What is the 4. Atomic number of carbon is 6. 6. What is its 6. valency? 4. 4. That means it is having It 4 can- electrons in its outermost shell. यही बात है बेटा. Now you come to a 9th syllabus also. मैंने 9th में जिनको भी मैंने केमिस्ट्री पढ़ाई है, I told you that time कि बेटा ये सब 10th में चाहिए आपको. Now it is the time to recall everything. ठीक है, समझ आ गया? That means if its valency is 4, that means what? It is having 4 electrons. You see the cursor also. Cursor पर दिमाग मेरा आपका ध्यान होना चाहिए. मैम कर्सर कहाँ घुमा रहे हैं, right? The atomic number of carbon is 6. Its electronic arrangement is 2 and 4. इसी क्या है electronic configuration क्या है इसकी? 2 and 4 है ना? That means what? It has 4 valence electrons. What is valence electrons? The number of electrons present in the outermost shell. मैं दोबारा recall करा रही हूँ आपको, याद करवा रही हूँ. And that is why I told you this chapter is very much important, right? जो अटेंड करेगा उसको बहुत अच्छे से समझ आएगा. मैं पूरा 100% समझाऊंगी, right? It has 4 valence electrons. Valence means what? There are two terms, valency and valence. I told you there is a difference. Valence is the number of electrons present in the outermost shell. Clear? What is valence? Yes. लिखो Number of electrons. Number of electrons in the Now we are outermost shell. In the outermost cell. Better you keep your notebook and pen along with you. Okay. So you can write the definition of valence electrons, that is number of electrons present in the outermost shell.
right? Now what is valency? Yes, what is valency? The number of Gaining or electrons losing the a compound of needs an to complete its octet. electron. Now you can note down the combining capacity of electrons. That means either it can lose or it can gain or it can share. So the combining capacity of losing or gaining or sharing electrons is called valency, right? Now it has how many electrons in the outermost shell? Yes, 4. 4, And right? 4. 4. So it has 4 electrons in its outermost shell. That means it wants how many more? कितने और चाहिए इसको? 4. 4. So 4. हाँ 4 चाहिए to complete its octet, outermost shell. ठीक है? So either it share 4 electrons or it gain 4 electrons, या फिर ये outermost shell second shell ही खत्म कर देगा. तो either it can lose the electrons, या तो वो 4 लूज करे या वो 4 गेन करे या वो 4 शेयर करे, राइट? समझ आ गया है? क्लियर? Yes, ma'am. मतलब इसके 2 शेल है. फर्स्ट शेल 2 इलेक्ट्रॉन्स है, सेकंड शेल 4 है. फर्स्ट शेल में 2 ही होने चाहिए, वो है. सेकंड शेल में 8 होने चाहिए, जिसके लिए वो चाहे तो 4 लेगा, चाहे 4 देगा या 4 शेयर करेगा. तीनों पॉसिबिलिटीज है ना. ठीक है? तो it can attain, see here, it can attain stability by gaining 4 electrons or losing 4 electrons और sharing 4 electrons. ठीक है? इसके पास 3 पॉसिबिलिटीज हैं, या तो वो 4 गेन करेगा या 4 वो लूज करेगा, 4 वो चेंज करेगा. नाउ आई एम डिस्कसिंग वेरी मच इंपॉर्टेंट पॉइंट. अभी बेटा मैंने बुक शेयर नहीं की है, बुक में नेक्स्ट क्लास में शेयर करूंगी. पेज नंबर 59 पर 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं. ठीक है? Note down page number 59. There are 2 points. I am going to discuss these 2 points now. Right? And examination point of view, these 2 points are very much important. अब बहुत बड़ी चीज. हाँ, yes बेटा. मैम वैलेंस की आपने डेफिनेशन बताई थी ना कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल. Valence, yes. ओके मैम. Valence, not valency. Valency में sharing, losing और gaining. Right? ठीक है? हाँ जी. So now coming to that main topic, now this carbon can lose और can gain, can share. इसके पास तीनों काम दे दिए, तीनों चीजें हैं, या वो लूज करे या वो शेयर करे या वो गेन करे. But students note down that it can't lose, it can't gain. ये लूज भी नहीं कर सकता, ये गेन भी नहीं कर सकता, ये सिर्फ शेयर करेगा. ऐसा क्यों? Now I am discussing this very much important question. ध्यान से सुनना. I am telling you, carbon cannot gain, carbon cannot lose, but it can only share. और that is why you are having large number of carbon compound कि इसमें sharing property है. जब आप sharing करते हो, friendship करते हो, cooperation करते हो, तो आपके friends ज्यादा बनेंगे. बनेंगे नहीं बनेंगे? अग्री और नो? बोलो. जब आपके अंदर कॉपरेशन की होगी, आपके अंदर शेयरिंग की क्वालिटी होगी, तो यू विल बी हैविंग मोर फ्रेंड्स. नहीं तो जिनको तुम देते रहोगे वो तुम्हारे फ्रेंड्स हैं, और जिनको तुम लेते रहोगे वो तुम्हारे कम होंगे. ठीक है? तो वहां पर कम ज्यादा हो जाते हैं. बट अगर आपके अंदर शेयरिंग बॉन्डिंग करने की ताकत है, यू कैन फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ फ्रेंड्स. कईयों को देखो बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं, और कईयों को जो जिनमें एटीट्यूड होता है उनके फ्रेंड्स ही नहीं होते. वो एक आधा ही होता है, वो भी एटीट्यूड वाला ही होगा. क्लियर? सो Yes, सेम ma'am. है, दिस कार्बन इज वेरी फ्रेंडली इन नेचर. क्लियर? इट इज नॉट लूजिंग, इट इज नॉट गेनिंग. ना ये दे रहा है ना ये ले रहा है, ये कहता है मैं तो सिर्फ शेयर करूंगा. ऐसा क्यों? ठीक है? सो फर्स्ट पॉइंट दैट इज गिवन इन योर बुक. अगर आपने बुक खोली हुई है आप देख लेना, नहीं तो अभी स्लाइड्स पे देखो. ठीक है? फर्स्ट मैं आपको हाईलाइट करके दिखाऊंगी. कई बार ये हाईलाइट हो जाता है, कई बार नहीं होता. ओके,
So my cursor is here, you can note down. It does not gain. Cursor देख लिया आपने, कहाँ है मेरा स्लाइड पे? Have you seen cursor? Yes, ma'am. हाँ, ध्यान देना अब यहाँ पर. It does not gain 4 electrons because it is difficulty for the 6 protons to hold 10 electrons. अब यही पॉइंट मैं समझा रही हूँ, ठीक है? It does not gain 4 electrons. ये 4 electrons नहीं ले सकता. क्यों? क्योंकि इसके पास कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं टोटल? मैम 6. प्रोटॉन कितने हैं? मैम 6. लिखते जाया करो कॉपी पे जो मैं क्वेश्चन पूछी हूँ. कार्बन डालो इलेक्ट्रॉन 6, तभी आपको समझ आएगा. प्रोटॉन डालो 6, डालिए. नोट करे तुमने? कॉपी पे नोट करने चाहिए जिससे कि आपको ये चीज समझ आएगी. इस चैप्टर में और अगले चैप्टर में कॉपी आपके पास में, पेन आपके हाथ में होना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पर आप नोट करो कि कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन भी 6 है, प्रोटॉन भी 6 है, ठीक है? अब अगर फर्स्ट पॉइंट वी आर डिस्कसिंग, दैट कि it does not gain 4 electrons. वो 4 इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता. Why? Because it is difficult for the 6 proton to hold 10 electrons. अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन्स ले लेता है तो उसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए बताओ? 6 उसके पास ऑलरेडी है, 4 उसने ले लिए तो कितने हो गए? 10. अब इसके पास प्रोटॉन कितने हैं? 6. ठीक है, प्रोटॉन कितने हैं? 6. तो अगर हमने स्टेबिलिटी करनी है तो बेटा माइनस प्लस कैंसिल होते हैं तभी स्टेबल होते हैं. अगर इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं और प्रोटॉन 6 रह जाते हैं तो ये क्या होगा? इसके पास नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गए, पॉजिटिव चार्ज कम हो गए, तो ये स्टेबल नहीं होगा. ठीक है, समझ आ गया है? जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही प्रोटॉन्स होने चाहिए एक स्टेबल एटम के पास, आयन के पास. ठीक है, अब इसको अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 6 प्रोटॉन्स हो जाएंगे, जो कि इसको कार्बन कैन नॉट होल्ड दिस, वो नहीं संभाल पाएगा. ठीक है, अगर एक ग्रुप के मेंबर ज्यादा होगा दूसरे ग्रुप के कम है, कैन यू मैनेज? बोलो. जिसके बाद नहीं हो सकता ना, आप सिंपल सोचो. राइट, मोर ओवर, राइट, क्योंकि मोर ओवर क्या है, इसको चाहे हम इलेक्ट्रॉन्स लें चाहे हम इलेक्ट्रॉन्स दे, वी आर लूजिंग द एनर्जी. मैंने आपको 9th में भी समझाया था कि अगर हमें 4 बार चीजें उठानी है, ठीक है, तो भी हमारी एनर्जी ज्यादा खर्च होगी और देंगे तो भी हमारी एनर्जी ज्यादा खर्च होगी. ठीक है, तो इसलिए ये क्या करता है, शेयर करता है. समझ आ गया है? समझ आ गया है? तो इट कैन नॉट लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स. ये 4 इलेक्ट्रॉन्स नहीं ले सकता क्योंकि इसके पास 10 प्रोटॉन्स, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 6 प्रोटॉन्स हो जाएंगे. और अगर मान लो ये 4 इलेक्ट्रॉन दे देता है तो क्या होगा बताओ? ले नहीं सकता, ठीक है. अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो क्या होगा बताओ? पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा ज्यादा. इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, प्रोटॉन 6 के 6 रहेंगे, एंड दैट इज आल्सो नॉट पॉसिबल. फर्स्ट पॉइंट, राइट, इट कैन नॉट होल्ड, क्योंकि उसको होल्ड करने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए, एंड लूज करने के लिए भी एनर्जी ज्यादा खर्च होती है, और लेने के लिए भी एनर्जी ज्यादा खर्च होती है, देने के लिए भी. सो इट विल नॉट गेन और इट विल नॉट लूज. समझ आ गया? फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया? Yes, ma'am. If you are seeing in your book also, it is given first and two दोनों points दिए हुए, right? समझ आ गया है? So in first and second point in your book, page number 59, these 2 points are given, that it does not gain 4 electrons because it is difficult to for the 6 protons to hold 10 electrons, and it does not lose also because it needs a large amount of energy to lose 4 electrons. Clear? वो ले भी नहीं सकता, दे भी नहीं सकता, क्योंकि उसको प्रोटॉन के साथ मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा. So what it will do? It will share, right? So it shares 4 electrons with other carbon atoms
to attain stability, right? तो ये क्या करेगा, अदर एटम्स के साथ शेयरिंग करेगा, right? Resulting in the formation of covalent bonds. Since carbon needs 4 electrons to its stability, its valency is 4 and it is tetra. Tetra means 4. Valent means valency. So its valency क्या है, 4 है. Clear? So carbon को क्या बोलता है, tetravalent compound. Tetravalent in nature. Right? Clear? ये भी अभी मैं आगे दोबारा टेट्रावेलेंट की बात दोबारा करूंगी when I am going to talk about the versatile nature of carbon. Right? समझ आ गया? So due to its sharing property, it forms large number of compounds. Clear? ये slide पूरी समझ आ गई? Yes, ma'am. Anyone is having doubt? हाँ बोलो, जिसको डाउट है बेटा वही बोलेगा. Yes बोलो. Yes. No, ma'am. Anyone is having doubt? So now टेट्रावेलेंट द्वारा एक्सप्लेन करना. टेट्रावेलेंट, टेट्रा मींस बेटा 4, वेलेंट मींस वैलेंसी. तो इसकी वैलेंसी क्या है, 4. 4 क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा, ना ये देगा ना ये लेगा. क्लियर? ओके मैम. हाँ चलो. Now we are going to discuss some covalent compounds. In your book it is given on page number 60. साथ के साथ बुक भी खोलते रहा करो, मैं पेज नंबर बताती हूँ. शेयर भी करूंगी बुक आपके साथ, पर नेक्स्ट क्लास में करूंगी. आज मैंने इस पे डाउनलोड नहीं करी बुक अभी. ओके. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स. नाउ कोवलेंट बॉन्ड इज अ केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम्स, राइट? Wait a minute, but I am having one call. Now, I'm audible? Yes, but I am audible. Yes, ma'am. Yes. Now we are talking about covalent bonds. What is covalent bond? Covalent bond is chemical bond formed by the sharing of electrons between atoms. Now, how this covalent bond is formed? By sharing of electrons, right? The sharing of one pair of electrons result in the formation of single covalent bond, right? अगर वो एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा. जैसे आई एम टॉकिंग अबाउट द एग्जांपल ऑफ हाइड्रोजन. हाउ नाउ यू रिमेंबर द एटॉमिक नंबर ऑफ वैलेंसी, साथ के साथ अब याद करते जाओ, ठीक है? नाउ व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन? 1. 1. Ma'am, 1. Then what is its valency? Ma'am, 1. One. 1. And one. क्योंकि इसको अपने आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? Ma'am, 1. 1. So what is see the now cursor? यहाँ पर ध्यान देना बेटा कर्सर पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. See here, this hydrogen is having 1 electron, right, in its outermost shell. This let me ask one thing. When you are writing the formula of hydrogen, what you will write? Ma'am, Yes. H2. Ma'am, H2 or H? H2 or Ma'am, H? H2. 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 We always write H2. Why? This hydrogen cannot exist in atomic form. ये मैंने आपको 9th में समझाया था. Hydrogen cannot exist in atomic form. Why? Because it is having 1 electron. तो ये
जो है स्टेबल नहीं है. इट शुड हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स टू बिकम द स्टेबल. तो इसलिए जब भी हाइड्रोजन ये एग्जिस्ट होता है, इट इज ऑलवेज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ कंबाइंड स्टेट. ये कंबाइंड स्टेट में मिलता है और ये H2 की फॉर्म में मिलता है. अब ये H2 की फॉर्म में कैसे मिलता है, नाउ यू आर गोइंग टू स्टडी, राइट. अब आप पढ़ोगे इसको कि हम H2 क्यों लिखते हैं. नाउ दिस हाइड्रोजन, इट इज हैविंग 1 electron in the outermost shell, right? And what it will do, it will call one more hydrogen. वो कहता है कि ना तो मैं अकेला एग्जिस्ट हो सकता हूँ, ना तू अकेला एग्जिस्ट हो सकता है, चलो हम दोनों मिलकर एग्जिस्ट होते हैं. ठीक है. कई बार क्या होता है, आपको लगता है कि आप अकेले काम नहीं कर सकते और आपका फ्रेंड भी अकेले काम नहीं कर सकते, तो व्हाट क्या कहते हो, चलो हम दोनों मिलकर काम करते हैं. बोलते हो नहीं बोलते हो? यस. Yes, ma'am. मैं ये एग्जांपल Yes, पता है ma'am. इसलिए देती हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द कंसेप्ट क्लियरली. ठीक है. तो ये हाइड्रोजन क्या करता है, एक हाइड्रोजन को और बुला लेता है कि ना तू एग्जिस्ट हो सकता है ना मैं एग्जिस्ट हो सकता हूँ, हम कंबाइंड होकर एग्जिस्ट होते हैं. तो व्हाट दे विल डू, सी हियर, दिस हाइड्रोजन इट विल शेयर द इलेक्ट्रॉन ऑफ अदर हाइड्रोजन. समझ आ रहा है? मैंने थोड़ा थोड़ा आपको 9th में समझाया था ये चीज. जिन्होंने 9th का चैप्टर याद रखा हुआ है उसको अब फायदा होगा. यस. दिस हाइड्रोजन, इसका हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ये है ना, और इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ये है. तो ये हाइड्रोजन क्या करता है कि चल दोनों मिलकर काम करते हैं. तो ये वाला हाइड्रोजन उसके इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग कर रहा है. एक सर्कल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं? यस. Ma'am, मेरा कर्सर देखो, कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं? Ma'am, 2. ma'am, two. तो कैसे आ रहे हैं? 1 उसका अपना है, एक उसका दूसरे का लिया है उसने. ठीक है. नाउ यू सी अबाउट सेकंड हाइड्रोजन. इस हाइड्रोजन के सर्कल में कितने आ रहे हैं? Ma'am, two. Ma'am, two. 2. इसका मतलब ये हाइड्रोजन क्या कर रहा है, एक अपना है एक उसका शेयर कर रहा है. तो ये दोनों हाइड्रोजन क्या कर रहे हैं, अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं. कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं? यस. कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं? One. 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 ठीक है. 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, इसलिए इसको बोलते हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड. क्या बोलते हैं? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड. Covalent. अब हाइड्रोजन, अब इसका दूसरा तरीका इसका ये है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में आपके पास सिंगल लाइन है. दिस सिंगल लाइन इज द सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, राइट. अगर 1 लाइन है तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है. अगर मैं यहाँ 2 कर दूंगी तो डबल होगा, अगर मैं यहाँ 3 कर दूंगी तो 3 होगा. ठीक है. अगर मैं 4 कर दूंगी तो टेट्रा होगा. क्लियर. So this hydrogen and this hydrogen, it is having one single bond, that is why it is forming the molecule called H2. अब ये H2 क्या है बेटा, it is a molecule. ठीक है. One molecule of hydrogen consists of 2 atoms of hydrogen. समझ आ गया? ये समझ आ गया? आ Yes, गया या ma'am. नहीं? Yes, Understand? ma'am. Yes. जब बॉन्डिंग होती है तब भी मॉलिक्यूल बनते हैं. है बेटा. हम जब इनमें बॉन्डिंग होती है तभी मॉलिक्यूल हाँ, फॉर्म. बॉन्डिंग होगी तभी मॉलिक्यूल बनेंगे, तभी ये शेयर करेंगे तभी मॉलिक्यूल बनेंगे. ठीक है. ओके मैम. ठीक है. थैंक यू. So this is about hydrogen. So you can read this now. अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछो. सिंगल बॉन्ड मैंने अभी आपको समझाया, अभी डबल नहीं समझाया, ट्रिपल नहीं समझाया. सिंगल बॉन्ड you have followed? Yes, ma'am. Yes, Now, ma'am. okay. Now we are coming to the double and triple covalent bond. कौन है? Now we are talking about double and Triple covalent bond. वेट बना, ये फिर प्रॉब्लम खड़ी हो गई.
Yes. Now we are talking about formation of double and triple covalent bond. Okay. Now we are talking about double and triple covalent bond. So I am talking about now oxygen. Now you remember the atomic number of oxygen is 8. 8. 8. What Ma'am. is its electronic configuration? 2, 6. 2,6. That means it is having how many electrons in outermost shell? 6. 6. 6. 6. How many it needs? 2. 2. Ma'am, कितने और चाहिए? 2. 2 और चाहिए. तो ये क्या करेगा? अगेन इट विल कॉल अनदर ऑक्सीजन. इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, राइट? बोथ ऑफ नीड 2 इलेक्ट्रॉन्स ईच. सो व्हाट दे विल डू, अगेन जस्ट लाइक हाइड्रोजन, ये भी ऑक्सीजन को बुला के कहता है कि ना मैं अकेले काम कर सकता हूँ, ना तू अकेले एग्जिस्ट हो सकता है. सो वी विल कंबाइन टुगेदर. नाउ हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स दे विल शेयर? इनको कितने चाहिए? कितने Two. चाहिए? 2. 2. So how many electrons they will share? Ma'am, 2. 2. So how they will share? See here, 2, 4. ये 2 इलेक्ट्रॉन्स मैंने ऑक्सीजन के इस साइड लिखे हैं और उसके भी इस साइड लिखे हैं, so that it will be easy to show you and it will be easy to draw. Right? You have to practice this diagram. Okay? So see this oxygen, इस सर्कल में देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए अब? 8. 8 हो गए. 6 Ma'am, इसके 8. अपने हैं और 2 ये दूसरे ऑक्सीजन के शेयर कर रहा है. सेम थिंग हियर, इस सर्कल में देखो कितने हो गए? 8. Ma'am, 8. 8 हो गए. 6 इसके अपने हैं, 2 ये वाले शेयर कर रहा है, राइट? सो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स दे आर शेयरिंग? Ma'am, Oxygen. 2. So that means what type of bonding it is having? Double. Double covalent. Covalent bond, right? And hence we write O2. Clear? This is the example of double covalent bonding. Have you followed now? Yes, ma'am. Yes. Hydrogen oxygen दोनों समझ आ गए? Now we are coming to the triple bonding, right? Triple covalent bonding. What is the atomic number of nitrogen? 7. 7. Ma'am, What is its electronic configuration? 2,5. 5, 2. right? Ma'am, So 2,5. It is how many electrons it is having in the outermost shell? 5. 5. 5. So how many it wants more? 3. 3. So see here, this nitrogen, it is having 5 electrons. It will call one more nitrogen. It is also having 5. तो ये इसको 3 शेयर करने हैं. तो this is how it is sharing 3 electrons. 1, 2. You can see this circle is having 8 electrons. 5 of its own, 3 is sharing from other nitrogen, right? Same thing with this. 5 is its of own and 3 is being shared. तो दोनों के पास कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 8 हो गए. शेयर करने से कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है? And How 3. much? 3. 3. So how much bonding you are going to show? Triple covalent. 3 lines means triple bonding. That means अगर double line है, that means it is sharing 2 electrons. अगर single line है, it is sharing 1 electrons. And if it is having 3 lines, that means it is sharing 3 electrons. So this is the example of triple bonding, triple covalent bonding. Have you followed? Yes, ma'am. Single, double, triple तीनों समझ आ गए? Yes, ma'am. Yes. Now I will show some more examples also. See here, hydrogen we have already discussed. Now fluorine. ठीक है? अब फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है? Ma'am, इसके 9. आउटर मोस्ट में, चलो आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 7, राइट? क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, ये सब हैलोजेंस होते हैं. ये मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में समझाऊंगी. और इनके सबके आउटर, जिनके पीछे आईएन आता है ना, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, ये सब एक ही ग्रुप में आते हैं. इनको बोलते हैं हम हैलोजेंस. ठीक है? तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है. ठीक है? उसके आउटर मोस्ट में 7 होते हैं.
ठीक है, और फ्लोरीन का आई थिंक इट इज 9, तो इसके आउटर मोस्ट में भी 7 इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये भी क्या करेगा, दूसरे फ्लोरीन को बुलाएगा और 1 इलेक्ट्रॉन्स की इस तरीके से शेयरिंग करेगा। तो मॉलिक्यूल बन गया F2। F इज द सिंबल ऑफ फ्लोरीन। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, देखो अब कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला देखो, ठीक है, इट इज गिवन इन योर बुक ऑन पेज, आई थिंक इट इज गिवन, और wait I'll be see, no it is not given in your book but this is an important example, right? कार्बन डाइऑक्साइड का देखो, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट में, 4। ठीक है, कितने और चाहिए, 4। सपोज मान लो कार्बन पहले एक, इसको आप कवर कर लो हाफ पोर्शन को, राइट, इसको छोड़ो, एक कार्बन है, इसको 4 चाहिए, तो मान लो ये एक ऑक्सीजन को बुलाता है, तो इस ऑक्सीजन के साथ ये कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर पाएगा, 2। 4 नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन को कितने चाहिए, ऑक्सीजन के पास कितने है, देखो ऑक्सीजन के पास 2 4 6 है, इसको 2 चाहिए, तो ये कार्बन के साथ सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन ही शेयर करेगा, वो 4 नहीं करेगा। समझ आ गया है? तो कार्बन कहता है कि चल 2 इलेक्ट्रॉन मैं तेरे साथ शेयर कर लेता हूं, फिर मैं एक और ऑक्सीजन को बुला लूंगा, तो it will call another oxygen and it will share another 2 electrons with this oxygen, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला क्या लिखते हो, यस CO2 क्यों लिखते हैं CO2, that is the question now, that is why what I am telling you why we are writing। एक तो आपने वैलेंसी से 9th में समझा है, ठीक है, वैलेंसी से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके CO2 लिख देते हो, है ना, ठीक है, कार्बन की वैलेंसी 4 है, उसकी 2 है, तो C2O4 को कैंसिल करके CO2 बना देते हो। बट व्हाट इज इन रियल सेंस, कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए और ऑक्सीजन को सिर्फ 2 चाहिए शेयर करने के लिए, तो वो कार्बन क्या करता है, 2 ऑक्सीजन को बुलाता है, वो कहता है कि 2 मैं इसके साथ शेयर कर लूंगा, 2 मैं तेरे साथ शेयर कर लूंगा, तुम्हारा भी दोनों का कंप्लीट हो जाएगा, मेरा भी कंप्लीट हो जाएगा। हैव यू फॉलोड? Yes, ma'am. फॉलोड और नो? Yes, ma'am. So this is how formula of carbon dioxide is formed, right? Now this is carbon tetrafluoride। अब कार्बन को कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स है, रेड सर्कल देखो, ये रेड डॉट्स कार्बन के हैं, ठीक है। फ्लोरीन के ऊपर हमने किया था, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, फ्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये देखो इस सर्कल में कितने इलेक्ट्रॉन है फ्लोरीन के पास, 7। देखो बेटा ध्यान से, जल्दी नहीं है, काउंट करो। Yes, ma'am. 7 है ना, तो फ्लोरीन Yes, को ma'am. चाहिए 1, कार्बन को चाहिए 4, Yes. तो कार्बन कितने फ्लोरीन को बुलाएगा, फिर फ्लोरीन को तो 1 चाहिए, तो वो 1 फ्लोरीन कार्बन के साथ 1 शेयर कर लेगा, है ना, ये वाला फ्लोरीन कार्बन के साथ 1 शेयर कर लेगा, फिर ये क्या करेगा, कार्बन दूसरे फ्लोरीन को बुलाएगा, दूसरे के साथ 1 शेयर करेगा, तीसरे को बुलाएगा, तीसरे के साथ शेयर करेगा, 4 को, क्योंकि कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करने हैं, तो वो 4 फ्लोरीन एटम्स को बुलाएगा। समझ आ गया? तो कार्बन टेट्राफ्लोराइड का फॉर्मूला क्या है, CF4, ठीक है, समझ आ गया, समझ आ गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. सेम विद द मीथेन, मीथेन भी शो करती हूँ मैं आपको, सर फ्लोरीन वाला था वो टेट्रा वैलेंट हो गया ना, टेट्राफ्लोराइड बोलेंगे बेटा, सो जैसे मीथेन को CH4 है ना, मीथेन बोलते हैं, तो ऐसे जैसे CCl4 है, कार्बन टेट्राक्लोराइड बोलते हैं। हम इसको मीथेन के साथ, फ्लोरीन की जगह आप क्लोरीन ले लो, क्लोरीन के साथ भी कर सकते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब फ्लोरीन के साथ किया तो कार्बन टेट्राफ्लोराइड, नाम कंपाउंड का ये होगा कार्बन टेट्राफ्लोराइड। ओके मैम, ऊपर वाला, फिर ऊपर वाला ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड कौन सा, ये? यस मैम, ये वाला फिर क्या होगा, ये तो डबल डबल बॉन्डिंग होगी, इसमें यहाँ 2 बॉन्डिंग, दो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, देख एक ये इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, एक ये, तो यहाँ भी डबल बॉन्डिंग आएगी और यहाँ भी डबल बॉन्डिंग आएगी,
ओके मैम, डबल बॉन्डिंग आएगी मैम, फिर और ट्रिपल यहाँ आएगी। पर अभी मैं दिखाती हूँ, ट्रिपल इसमें नहीं आएगी, ट्रिपल अमोनिया वाले में इसमें नहीं होगी, ट्रिपल आएगी NH3 जब बनाएंगे हम, नाइट्रोजन को 3 चाहिए ना, तो उसमें आऊंगी मैं, अमोनिया का बता के दिखा दूंगी, अमोनिया वाले में ट्रिपल बॉन्डिंग होगी, ठीक है, ओके मैम, समझ आ गया? सो हियर दिस कार्बन CCl4 है ना यहाँ, तो सिंगल सिंगल बॉन्डिंग होगी, फिर इधर तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होगा ना है मैम, इधर तो फिर सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होगा हाँ, ना। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होगा बेटा, मैं दिखा रही हूँ आपको, रुको, हाँ हियर देखो मीथेन, सी हियर सिंगल लाइन आई हैव शोन यू, यहाँ पर सिंगल सिंगल लाइन शो की है, ये मीथेन का एग्जांपल है, ठीक है, यू कैन ड्रॉ द डायग्राम इन दिस वे आल्सो, हाइड्रोजन के पास ये डॉट है जो वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो क्रॉस है वो कार्बन के हैं, तो हाइड्रोजन भी एक एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेगा, ठीक है, और कार्बन चारों के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेगा, तो यू कैन, दिस इज द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, और इसको आप एक सिंगल सिंगल बॉन्ड से शो करोगे, राइट, हैव यू फॉलोड? Yes, ma'am. ठीक है, सेम विथ देखो इधर इथेन, अभी इथेन आप डिटेल में यहाँ पर कार्बन मिसिंग है, यहाँ सी आएगा, यहाँ पर एक सी लिखा है ना, जैसे ये दूसरा सी यहाँ लिखा होना चाहिए, यहाँ मिसिंग है, ठीक है, समझ आ गया है? यहाँ पर क्या है, जहां मेरा कर्सर है क्या है यहाँ, मैम यहाँ C लिखना है। सी लिखना है, ठीक है, तो कार्बन 2 हो गए, तो ये कार्बन क्या करेंगे, ये 3 तो हाइड्रोजन को बुला लेगा, एक हाइड्रोजन के 3 इसके साथ शेयर करेगा, और दूसरे कार्बन चौथा जो है कार्बन के साथ शेयर करेगा, ठीक है, सेम थिंग ये वाला कार्बन भी 3 हाइड्रोजन को बुलाएगा और एक कार्बन के साथ शेयर करेगा, दिस इज हाउ, ये देखो, ठीक है, तो ये बन गया मीथेन, ये बन गया इथेन, ऐसे ही अभी मैं आगे होमोलोगस सीरीज की बात करूंगी आपसे, जिसमें मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन की लंबी चेन आती है, और क्योंकि ये कार्बन कार्बन, ये देखो कार्बन कार्बन के साथ शेयर कर रहा है ना, कार्बन कार्बन के साथ शेयरिंग कर रहा है या नहीं, and due to this property it forms large number of compound, कार्बन अकेला एलिमेंट है जो अपने ही एलिमेंट के साथ कंबाइन कर लेता है, सिर्फ इसके अलावा फास्फोरस और सल्फर है, बट फास्फोरस भी 5 तक ही कंबाइन करता है, 5 पी के साथ, और सल्फर 8 एस के साथ कंबाइन होता है, ये कार्बन जो है 60 70 100 इनकी लंबी चेन बन जाती है, ये पॉलीथीन वगैरह बनते हैं ना जो, ठीक है, जो पॉलीथीन्स बनते हैं वो इसी प्रॉपर्टी के बेस में है, क्योंकि कार्बन कार्बन कंबाइंड होकर लॉन्ग चेन्स बनाता है, और जिससे पॉलीथीन वगैरह बनते हैं, समझ आ गया, इसको बोलते हैं पॉलीमराइजेशन, या आप डिटेल में +1 वगैरह में पढ़ोगे, ठीक है, अभी मैं आपको और स्ट्रक्चर्स दिखाती हूँ, ये देख लिया आपने, मीथेन इथेन देख लिया, अब आपको समझ आ गया, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड समझ आ गया? मैम यस मैम, एनी डाउट? मैम नो हाँ मैम, जी, हाँ, मैम ये कंपल्सरी है कि हम नाइट्रोजन ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड से ही शेयर करेगा इलेक्ट्रॉन? कौन, नाइट्रोजन? यस। बेटा नाइट्रोजन का मैं आपको एग्जांपल लिख के ना बना के दिखाऊंगी पहले, ठीक है, क्योंकि अभी आप ऐसे ओरली पूछोगे तो कंफ्यूज हो जाएगा, अभी जितने मैंने स्ट्रक्चर दिखाए हैं ना, आप इसको पहले प्रैक्टिस करो, ठीक है, फिर मैं और एग्जांपल्स आपको लेके मैं ड्रॉ करके स्लाइड्स पे डाल दूंगी, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, दिखा दूंगी, क्लियर? मैम कंपल्सरी है कि वो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड से ही शेयर करेगा इलेक्ट्रॉन? कंपल्सरी है, सिंगल को नहीं, सिंगल भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है, अभी हमने कार्बन डाइऑक्साइड में डबल नहीं करा, ये देखो यहाँ डबल है, कार्बन डाइऑक्साइड में डबल है, ट्रिपल बॉन्ड के भी मैं एग्जांपल लेके आपको ड्रॉ करके फिर दिखाऊंगी, फिर बताऊंगी, ठीक है, अगर मैं ये चीजें ना बेटा ज्यादा ओरली एक्सप्लेन करूंगा विदाउट शोइंग, आपको समझ कम आएगा, इसलिए नहीं मैं ले रही हूँ एग्जांपल, अभी जितने एग्जांपल है आप उतने ही डिस्कस करो, और इतनों को प्रैक्टिस कर लेना है पहले, इट इज गिवन इन योर बुक आल्सो,
ठीक है, जो ट्रिपल Yes, ma'am. बॉन्डिंग है वो मैं आपको नाइट्रोजन के साथ अमोनिया में दिखाऊंगी। ठीक है, क्लियर? हाँ जी। नाउ सिर्फ ये डिस्कस करूंगी एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, क्योंकि ये आपने पढ़ा हुआ है। उसके बाद मैं और चीजें कल डिस्कस करूंगी मंडे को। क्लियर? एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन में यू नो व्हाट इज एलोट्रॉपी? आपने 8th में पढ़ा है। एनीवन कैन एक्सप्लेन? It is written here, allotropy or allotropism is the property of some chemical which exists in 2 or more different forms. ठीक है? You can see there are 3 allotropes: graphite, diamond, and fullerenes. These are the allotropes of carbon. ठीक है? Here the only physical property will change. केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी, इनके स्ट्रक्चर चेंज होता जाएगा। एंड लाइक दैट अगर आप ग्रेफाइट की बात करो स्ट्रक्चर की, तो ग्रेफाइट में क्या होता है, कार्बन के 4 कॉर्नर है, अभी आपने देखे थे। यहाँ देखो कार्बन के कितने कॉर्नर है, 1 2 3 4, 4 कॉर्नर है कार्बन के। यस यस मैम। Yes, ma'am. है। तो डायमंड और ग्रेफाइट में क्या डिफरेंस है? डायमंड में क्या होता है कि 4 के 4 कॉर्नर्स दे आर अटैच विथ अदर कार्बन एटम्स। ठीक है, मतलब क्या है कि यहाँ पर भी H, यहाँ पर जैसे यहाँ मैंने H लिखा हुआ है, यहाँ पर भी चारों कॉर्नर्स पे क्या आ जाएगा, कार्बन आ जाएगा डायमंड के केस में। ठीक है, तो इसके चारों कॉर्नर अटैच हो जाते हैं। और ग्रेफाइट में क्या होगा, इसके 3 कॉर्नर अटैच होंगे, 1 विल बी फ्री। ठीक है, यहाँ पर मान लो जहां मेरा कर्सर है कि वहां पर कार्बन नहीं है, यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर कार्बन नहीं है। तो ये इस स्ट्रक्चर के कारण क्या होता है, इनकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। ठीक है, आई विल शो यू वन बाय वन स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर के कारण क्या होता है, इनकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। व्हाट काइंड ऑफ प्रॉपर्टी विल चेंज? डायमंड जो है इट विल बी द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके चारों कॉर्नर अटैच है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होने के लिए जगह नहीं है। और ग्रेफाइट इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इसके 3 कॉर्नर अटैच है, 1 इज फ्री, और जिसके कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो जाते हैं। ठीक है, सेकेंड डिफरेंस क्या आता है, ये हार्ड बन जाता है, डायमंड हार्ड बन जाता है, ग्रेफाइट सॉफ्ट बन जाता है। राइट, एंड इट इज सो मच हार्ड, डायमंड इतना हार्ड बनता है कि दे कैन कट। इसके सर्जिकल टूल्स बनते हैं, जो आई ऑपरेशन में टूल्स यूज करते हैं ना हम। ठीक है, आपका जो आई ऑपरेशन में आई के ऊपर से मान लो जी कैटरेक्ट में क्या होता है, लेयर आ जाता है, तो ये डायमंड से जो है, डायमंड के टूल से उस पतले लेयर को रिमूव करते हैं। ठीक है, समझ आ गया? सर्जिकल टूल्स बनते हैं बड़ी शार्प। और ग्रेफाइट जो है ये सॉफ्ट होता है, तो ये इससे टूल नहीं बनते। राइट, इट इज अ गुड कंडक्टर, इट इज अ बैड कंडक्टर, इट इज हार्ड, इट इज सॉफ्ट। एंड दिस ग्रेफाइट इज स्लिपरी इन नेचर, ये लुब्रिकेंट के काम आता है, सॉफ्ट है और स्लिपरी बन जाता है। तो देखो कितनी प्रॉपर्टीज चेंज हो गई। डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाता है, ग्रेफाइट का कम हो जाता है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज विल चेंज बट केमिकल प्रॉपर्टीज विल नॉट चेंज। राइट, समझ आ गया है? जलाओगे तो दोनों ही कार्बन के बने हुए शो कर देगा, तो केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती हैं। तो व्हाट इज द एलोट्रॉपी? विच द एलिमेंट एग्जिस्ट इन 2 or more forms. Right, clear? They are known as allotropes. ठीक है, they are bonding together in different manner. For example, we can come to the graphite. See here, इसको बोलते हैं हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। हर एक कार्बन का देखो, ये कार्बन पकड़ो, एक डॉट पकड़ो, एक बॉल पकड़ लो, एक बॉल के कितने अटैच हैं, 1 2 3, यस 3 आर अटैच। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी के कारण जो है ये इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। नाउ कमिंग टू डायमंड, डायमंड शो करती हूँ आपको। डायमंड में देखो इसके चारों कॉर्नर अटैच है, 1 2 3 4। ठीक है, और इसके कारण ये हार्ड बन जाता है। देखो इट फॉर्म्स रिजिड स्ट्रक्चर।
इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन। प्रॉपर्टी डिफरेंस मैंने आपको बता दिया है। नाउ कमिंग टू द थर्ड एलेक्ट्रॉन दैट इज फुलरेन, राइट। इसके अंदर पता कितने कार्बन है? 60। ये 60 कार्बन दे आर बॉन्डेड टुगेदर, और ये कार्बन अकेला एलिमेंट है जिसके खुद कार्बन 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 के साथ कंबाइंड होता रहता है, ठीक है। और ये किसने डिजाइन किया? बकमिंस्टर फुलर ने, और इसलिए इसका नाम पड़ा फुलरेन, राइट। और ये जो है क्योंकि ये 60 कार्बन का बना है, और इसके अंदर क्या है? इसके अंदर भी देखो आप 3 कॉर्नर्स अटैच है, 4 नहीं अटैच है, ठीक है। और इसके ऊपर अभी रिसर्च चल रही है, रिसर्च इज गोइंग ऑन, सो दैट वी कैन मेक यूज ऑफ इट इन डिफरेंट वेज। क्योंकि अगर इसके भी 3 कार्बन अटैच हैं, सो वी कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू दिस आल्सो। और जिस दिन हम कामयाब हो गए तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि ये गुड कंडक्टर बन जाएगा, इलेक्ट्रोड्स वगैरह इंडस्ट्रीज वगैरह में बहुत ज्यादा यूज होने लग जाएगा। क्लियर? समझ आ गया? हैव यू फॉलोड? Yes, ma'am. Yes, ma'am. आपने now you should know the difference Yes, property ma'am. between diamond and graphite. इसकी प्रॉपर्टी डिफरेंस आपने खुद लिखना है डायमंड एंड ग्रेफाइट का। You have already studied in 8th class also. So till here I am going to complete, till here I have completed more, near about half chapter I have completed. ठीक है? So tomorrow, that is on Monday, I am going to discuss that is large number of carbon compound. ये long chain मैंने बताया ना, कार्बन कार्बन के साथ combined हो जाता है, ठीक है। How they form the chain, that I am going to discuss in my next class. So till here we have done, that is electron forms of carbon. मैंने आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने सिखाए, ठीक है, इंट्रोडक्शन दिया, कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स डिस्कस की। इफ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क। No, ma'am. No, ma'am. Anyone is having ma'am. problem, you can ask. Now I'm